السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالواحد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الیکٹرک ٹیچ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈولنس واشنگ مشین پہ بھی مکمل کنیکشن کا آسان ڈائیگرام بناؤں گا، تو میں آج اس کو ڈائیگرام کو کنیکشن کر کے دکھاؤں گا۔ ڈائیگرام تو میں نے بنا لیا ہے، تو آپ لوگ دیکھیں، اور جس نے ویڈیو نہیں دیکھی عام واشنگ مشین کے بارے میں، اس کو معلومات چاہیے جو ڈولنس کا نہ ہو، دوسرے واشنگ مشین ہو، تو میرا پچھلا ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈولنس میں ایک تو یہ ہے کہ ڈولنس میں ٹائمر سے 7 تاریں نکلتی ہیں، ٹائمر کے 7 تاریں نکلتی ہیں ڈولنس میں۔ اور پچھلا ویڈیو جو میں نے بنایا تھا عام واشنگ مشینوں کا، اس میں 6 تاریں نکلتی ہیں ڈولنس میں۔ اس میں 7 تاریں نکلتی ہیں۔ اس میں 2 وے سوئچ کے جگہ جو ہے سوئچ لگا ہوا ہے، وہ سوئچ میں آپ یہاں نیوٹرل دو گے تو پن دبانے سے نیوٹرل دوسرے پورٹ میں جائے گا، پن کو چھوڑنے سے دوسرے پورٹ میں جائے گا، تو اس طرح واشنگ مشین چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزر ہے، بیل ہے اس کا، اور انڈیکیٹر لیمپ ہے، رجسٹر ہے اس کے ساتھ لگا ہوا، کیپیسٹر ہے، موٹر ہے، یہ 3 پن پلگ ہے۔ شروع کرتے ہیں 3 پن پلگ سے۔ 3 پن پلگ میں اس میں 3 پن ہیں، ایک ہوگا اپنا لائن پیس، دوسرا ہوگا نیوٹرل، بیچ والا جو موٹا پن ہوتا ہے وہ ارتھ کے لیے ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں ارتھ ہوگا تو وہ اپنا اس میں ارتھ دے دے اپنے پاور پلگ میں، تو اس میں ارتھ آ جائے گی۔ ارتھ یہ جا کے موٹر کے باڈی کے ساتھ لگتا ہے، جس کی وجہ سے موٹر میں ایڈی کرنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ موٹر جو ہے کسی کو شوک لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس میں 3 تار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تار جا کے موٹر کے باڈی سے لگتا ہے، ایک نیوٹرل ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں موٹر کے طرف۔ موٹر میں 2 وائنڈنگ ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ، رننگ اور کامن۔ 2 وائنڈنگوں کو ملا کے کامن تار نکالا جاتا ہے۔ ہمارا پیز جو ہے وہ کامن تار کے ساتھ لگے گا، اور کیپیسٹر کے 2 تار ہیں جو ہیں وہ جو ہیں رننگ اور پیز کے اسٹارٹنگ کے ساتھ لگیں گے۔ اب کیسے لگیں گے میں بناتا ہوں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسے میں لگاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اوپر چلیں گے، دوسرے چیزوں کا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہمارا پیز جو ہے، پیز کا تار آ کے اپنے کامن کے ساتھ، پیز کا تار آ کے ہمارے کامن کے ساتھ یہاں مل جاتا ہے، کامن کے ساتھ یہاں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیز کے تار اوپر جانے کا پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، پیز کا تار جو اوپر جاتا ہے، جو اوپر جانے پینل میں جاتا ہے، پینل میں جانے کے لیے اس کا کوئی ضرورت نہیں، نیوٹرل لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ موٹر کو یہاں سے دے دیا گیا۔ اوپر صرف بلب کے لیے اور بزر کے لیے، بیل کے لیے اوپر سے بھیجتے ہیں کہ ان کو چلائے، ٹھیک ہے۔ اب کیپیسٹر کو کنیکشن کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیپیسٹر کو کس طرح کنیکشن کرتے ہیں۔ اور میرا پچھلا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ڈولنس کے علاوہ دوسرے واشنگ مشین کا طریقہ دیکھنا ہے کنیکشن کا، تو میرا پچھلا ویڈیو، اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ کیپیسٹر کا ایک تار آ کے یہاں اس تار کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور دوسرا تار آ کے اپنا اس تار کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تار جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کیپیسٹر آپ اوپر لگائیں پینل میں یا نیچے موٹر کے ساتھ لگائیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ اس کو موٹر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں نزدیک میں، یا اس کو اوپر پینل میں لگا کے اسی تاروں کے ساتھ ایسے ملا کے اس کو آپ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ اب ہم لے جاتے ہیں پیز اور نیوٹرل کو، اور پیز اور نیوٹرل اوپر جا کے کہاں کہاں ملتے ہیں پھر وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیں ہمارا ویڈیو۔ پیز کا تار اوپر جاتا ہے، پیز کا تار کا اور کوئی کام نہیں ہے، پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ پیز کا تار صرف جاتا ہے بزر کو اور انڈیکیٹر لائٹ کو آن کرنے کے لیے،
इंडिकेटर लाइट जो है वो डार्क न्यूट्रल पेज पे ऑन होता है, क्योंकि इंडिकेटर जो है उसको जैसे ही आप मोटर को स्विच में लगाओगे और अपना वॉशिंग मशीन को, तो उसको ऑन होना है, जबकि बैल जो है अपने टाइम पे बजेगा। जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा, कपड़े धुल जाएंगे, बैल अपने आप बजने लग जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप टाइमर को आप घुमाएं या कपड़े निकालें। इस तरह इनको पेज मिल गया। अब न्यूट्रल को ले जाते हैं, न्यूट्रल जाके बल्ब में लगेगा, और न्यूट्रल यहाँ टाइमर में कहाँ लगेगा वो मैं बताता हूँ। न्यूट्रल यहाँ आया, न्यूट्रल यहाँ इसके साथ रजिस्टर के साथ मिल गया, ठीक है। क्योंकि एक इंडिकेटर बल्ब आपने देखा होगा, उसके साथ एक रजिस्टर होता है, अगर रजिस्टर ना हो तो इंडिकेटर बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए इसको रजिस्टर लगाते हैं। ये अब आप लोग समझ गए। अब मैं इसका कनेक्शन आप लोगों को बताता हूँ। अल्लाह आप लोगों का भला करे। न्यूट्रल जो है, इसके पहले मैं बता दूं, इसमें 9 पिन्ने हैं। असल में पिन्ने बताने का मकसद है कि आपका तार टूटा हो तो आपको पता हो कि आप तार कहाँ ज्वाइंट करोगे तो चलेगा। ये पिन्ने इसीलिए मैं बताता हूँ। वैसे आप टाइमर खरीदोगे तो उसके साथ अलग से तार निकले होंगे, रंगीन तार होंगे, कलर कोटिंग के हिसाब से लगेंगे, लेकिन इस तरह आपको आसानी होगा पिन्नों को देख के, ठीक है। तो इसमें होते हैं 9 पिन होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन्ने। 6 और 9 कॉमन होंगे, 4 और 7 कॉमन होंगे। ये दोनों पिन आपस में कॉमन होंगे, शार्ट होंगे, मिले होंगे, और यही इसके दोनों तार ही कैपेसिटर वाले वायर में आएंगे। जो दो कॉमन जो दो पिन्ने होंगे, इसी के तार आके कैपेसिटर में लगेंगे। अब हम न्यूट्रल को जोड़ेंगे। न्यूट्रल आपका अल्लाह भला करे पिन नंबर 3 में यहाँ न्यूट्रल जुड़ेगी, यहाँ न्यूट्रल जुड़ेगी। और मैं इसका कलर कोटिंग भी आप लोगों को बताता चलूँ कि तार जो होगा काला होगा, ये तार का कलर होगा काला, इस तार का कलर होगा काला। अब इसमें से बीच वाली पॉइंट जो है, बीच वाली तार जो है, ये यहाँ से निकलेगी, 2 वे स्विच के मेन पॉइंट में जाएगी, यहाँ मेन पॉइंट में यहाँ जाके लगेगी, मेन पॉइंट में यहाँ जाके लगेगी। इसका कलर होगा ब्राउन कलर में होगा, कताई कलर में। और तीसरा तार जो है, इसमें पहले पॉइंट वाला तीसरा पहले पिन वाली जो तार है, ये यहाँ से निकलकर ये आपके बैल को जाएगी सीधा, ये आपके बैल के लिए जाएगी, ठीक है। बैल को पेस्ट दे दिया, अब न्यूट्रल बैल को यहीं से मिलेगा। ये बैल को मिल गया न्यूट्रल। ये लाल तार होगा, सफ़ेद पट्टी वाली तार होगी, ठीक है। अब ये नीचे का इसके 3 पिनों का हो गया। अब ऊपर के 4 पिन्ने रहते हैं, 4 पिनों का मैं बताता हूँ आपको किस तरह होगा। 4 पिनों का इस तरह होगा कि ये दो जो मैं बता रहा हूँ, जो शॉर्ट किए गए हैं जो आपस में, ये दो तो आपके, इसको मैं किसी और कलर में बनाऊंगा तो आप लोगों के समझ में ज़्यादा आएगा। इसको ग्रीन कलर में बनाता हूँ। ए पिन एक यहाँ से होते हुए ए पिन आके आपकी कैपेसिटर के तार में लगेगी यहाँ, और दूसरी पिन
वो भी शॉर्ट किया हुआ जो दूसरा पिन है वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से होते हुए आपके दूसरे कैपेसिटर वाले पिन में वायर में लगेगी। अब इसके कलर क्या होंगे? इसका कलर होगा जामुनी कलर में होगा ये, और दूसरा जो है नीला कलर में होगा, नीला। एक कलर कोटिंग भी आप याद रखें, टाइमर में जो तार आते हैं उनका कलर कोटिंग के हिसाब से लगते हैं। अब ये 2 पिन बचे हुए हैं, जो बीच वाला जो नीचे से जो हम लोगों ने पिन लिया हुआ है, इसको मैं लाल कलर में बनाता हूँ क्योंकि तार पर मिक्स होंगे, आपके समझ में नहीं आएंगे। ये पिन यहाँ से जाएगी, बीच वाला पिन 5 नंबर, ये आके यहाँ, अल्लाह आपको भला करे, यहाँ से जाने के बाद आके आपके स्विच के ऊपर वाले पिन में लगेगी। ठीक है, ऊपर वाले पिन में लगेगी। पीले कलर का तार होगा, इसका कलर होगा पीला कलर होगा, ये पीले कलर में होगा। और दूसरा आखिरी तार जो बचा है आपका, उसे हम बनाते हैं, उसे नीले कलर में बनाते हैं। ये तार आपका होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से होते हुए ये आके आपके स्विच के दूसरे पिन में लगेगा। ठीक है, तो इसका कलर होगा लाल, ये होगा लाल कलर में। ये हो गया आपका मुकम्मल डायग्राम, डॉवलेंस वॉशिंग मशीन का मुकम्मल डायग्राम। अब ये काम किस तरह करता है? जैसे ही न्यूट्रल आ जाएगी, तो न्यूट्रल यहाँ से होते हुए आपके स्विच में जाएगी, यहाँ से पीले तार में लग के यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, मोटर चलता रहेगा। जब आप यहाँ से स्विच को ऑन करोगे, अभी ऑफ हालत में, जब आप इसको ऑन करोगे, टाइमर 2 वे स्विच के हैंडल को घुमा के इसको ऑन करोगे, तो ये पीले तार से लाल तार में आएगी, लाल तार से स्पिन में आएगी। तो मोटर जो है रिवर्स, फॉरवर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसमें चलता रहेगा, यानी कुछ सेकंड, कुछ मिनट एंटी क्लॉकवाइज, कुछ मिनट क्लॉकवाइज चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं कैमरामैन से अर्ज़ करता हूँ कि वो आप लोगों को इसका एक ऐसा तस्वीर लेके दे जिसको आप लेके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आइंदा आप लोगों के काम आएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं वॉशिंग मशीन पे और भी कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ। वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकली आप लोगों को उसका मोटर चला के दिखाऊंगा कि मोटर में कैपेसिटर कैसे लगेगा, कैसे तार लगेगा पेस का, और पेस को इस तरफ, न्यूट्रल को इस तरफ लगाओगे तो मोटर इस तरफ उस तरफ चलेगी। इनमें सब अब आप लोगों को वॉशिंग मशीन पे डायग्राम यही थे दोनों पे। अब डायग्राम के बाद मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन खोल के वॉशिंग मशीन में समझाऊंगा इंशाल्लाह। आगे वीडियो आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यार आप लोग वीडियो माशाल्लाह देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करते हो बल्कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखेंगे तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात आप लोगों से अर्ज़ करूं कि हमारे चैनल पे और पीछे भी आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में मालूम करना हो, जैसे पीछे हमारे वीडियो में वो वीडियो ना हो, जैसे किसी कंपोनेंट्स के बारे में या किसी सर्किट के बारे में आप मालूम करना चाहें तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर पूरा मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। आप डायग्राम में कहोगे, डायग्राम में भी आपको समझा देंगे। आप वैसे ही कहोगे, वैसे भी आपको सर्किट दिखा के आप लोगों को समझाएंगे इंशाल्लाह। आप कमेंट तो करें, आप लोग कमेंट ही नहीं करते कि आप लोगों को क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या आप लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। दुआओं में याद रखें।
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔